set to vote exactly a week from now. The state will decide if it wants to retain the Badals in power or hand over the reins to Amrinder Singh of the Congress. ईमानदारी वाला प्रेडिक्शन दीजिएगा, ये नहीं कि हम तो 117 सीटें ले आएंगे। 100 से ज़्यादा पक्का। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे वाला 100 से ज़्यादा सीट लिख के दूं? Or try out Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party for the first time. The stakes in this historic triangular contest are sky high. The Punjab battle is down to the wire, and that's where the newsroom is tonight. Hello and welcome to this special broadcast. I'm Akshita Nandagopal. Over the next half hour, our focus is on the state of Punjab as it gets set for those crucial assembly elections. Political parties are banking clearly on the major drug menace in the state to pin down their opponents. Now, as the Congress and AAP launched scathing attacks on the ruling Akali Dal, the Badals are on the defensive, claiming that there is absolutely no drug issue in the state. But it remains to be seen who really rides high in the drug-infested state in the upcoming polls. Take a look at this detailed report. Widespread addiction of drugs, blatant use of intoxicants, a menace which even inspired a Bollywood film. The deadliest weapon in the opposition arsenal against the incumbent Badal government. The drugs problem is particularly acute in the border state, with official figures putting the number of drug addicts at more than 2 lakh. Nearly 7,500 crore goes down the drain because of drugs every year. 1,23,000 are addicted to heroin, one of the worst addictions. पूरे पंजाब को इन्होंने नशे ने बर्बाद कर दिया। कई पिंडों में मैं गया, पूरे के पूरे पिंड बर्बाद हो गए। मैं बहुत घूमा हूं पंजाब में, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए। कहां गया वो पंजाब जो जाना जाता था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए? आज वो चिट्टे की वजह से जाना जाता है। नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे, और पहचान खो दोगे सिद्धू तो बिखर जाओगे। What's worse for the Badals is the reported involvement of top Akali leaders in the drug trade. The Badal government has been attacked not only for turning a blind eye to the problem, but also patronizing the trafficking of drugs. Fingers have been pointed at several cabinet ministers of Punjab. तो ये एक प्रोपेगेंडा है, जो प्रोपेगेंडा पंजाब को बदनाम करने के लिए पहले कहते थे पंजाबी आतंकवादी हैं। कौन से आतंकवादी हैं? सबसे ज्यादा हमारे आदमी मारे गए, फिर कहते हैं ये नशेड़ी हैं। As Punjab goes for polls in less than 2 weeks, resentment against the drugs problem will be a decisive factor, with several reports suggesting that at least 40% of the youth in the state are addicted to drugs. It needs to be seen that in the drug-infested state, who finally ends on a high. Bureau Report, India Today. Well, there's a reason why many experts have opined that the drug menace issue could in fact play the heart in these particular assembly elections. Listen into how different stakeholders have all raked up the drug menace issue in their campaigns in Punjab. नशा खत्म करना है अपने को। पूरे पंजाब को इन्होंने नशे में डुबो दिया है। पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया इन्होंने। औरतों से उनके सुहाग छीन लिए। मजीठिया उनका एजेंट है अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया का। 1 महीने के अंदर नशे की सप्लाई बंद करेंगे और मजीठिया को जेल भेजेंगे। अकाली के नेता ने, अकालियों के नेताओं ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि यहाँ कोई ड्रग नहीं है। 2-3 साल बाद पूरा पंजाब कह रहा है कि पंजाब में ड्रग्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सिर्फ एक है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए सारी दुनिया को ये एक ड्रग जाती है।
हम यहाँ उसको पकड़ते भी हैं, लेकिन मेन ड्यूटी जो बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसका है कि वो यहाँ से सील करें। इसका ये है कि यहाँ पुलिस की भर्ती हुई है, लाखों बच्चों ने इंटरव्यू दी, उसमें ड्रग टेस्ट था, 1% भी नहीं आया। Devout moderate Sikhs have long been the backbone of Punjab's Akali Dal Panthak voters. In fact, as they are called, never supported the Congress because of 1984. But this core constituency has clearly been split in the middle this time. Many of them have switched loyalties to the Aam Aadmi Party. Here's a ground report on how and why this happened. The year 2015. Sikhs erupt in protests in Punjab over numerous incidents of desecration of Guru Granth Sahib in the heartland of their faith. A turning point for the Shiromani Akali Dal when members of its core constituency of Panthak voters, the devout moderate Sikhs, turn against its government for its handling of the situation. Fast forward to 2017, ahead of state elections. This is a village in Punjab's Doaba region, a traditional Akali stronghold. But what I'm sensing here right now is a strong wave against the ruling dispensation, primarily because of Sikh religious issues, drugs and unemployment. Bhupinder Singh is a 30-year-old farmer. He belongs to a family of initiated Sikhs who always supported the Shiromani Akali Dal. But they want this time, he says. पिछले साल गुरु ग्रंथ साहब की हर शहर में बेअदबी हुई और अभी तक हो रही है ना, जिसकी वजह से अकाली सरकार जो कि एक पंथक सरकार है, पंथ के नाम पर वोटें गिरा रही है, उन्होंने आज तक किसी भी मुजरिम को ना ही पकड़ा ना ही कोई कार्रवाई हुई है, जिससे सार हमें सिख जितने भी हैं सभी के हृदय में ये बहुत ज़्यादा बड़ी ठेस लगी है। Sukhdev Singh Bhor was one of the top religious representatives of the Shiromani Akali Dal, a former General Secretary of the SGPC, a close aide of the late stalwart Gurcharan Singh Thora. This January, he broke his lifelong bond and joined the Aam Aadmi Party. The severance had its roots in 2015. सिखों के लिए इतना बड़ा दर्द था वो कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई और एक मिथे हुए प्रोग्राम के अनुसार हुई। अगर अकाली दल का प्रधान भी वहाँ नहीं जाएगा, श्रोमणी कमेटी का प्रधान भी नहीं जाएगा, तो सिख सोचने लग गए फिर ऐसी सरकार से हमने क्या लेना है। Bhor is now touring across the state to campaign for Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party. In the hinterlands of Punjab, like this village, votes are being sought not just for the candidates but in the name of party bosses. And this is for the first time in the history of the state that parties as grand and as mighty as Shiromani Akali Dal and Congress are facing a formidable challenge from Delhi's AAP, which is less than 5 years old. The Shiromani Akali Dal has drawn most of its power from the Sikh community, but cracks too wide to cement seem to have appeared this time in its core constituency, to the advantage of rivals. Arvind Shah Singh for India Today in Banga, Punjab. Well, India Today's Ankit Tyagi caught up with Arvind Kejriwal in his last mile dash for Punjab. He's clearly confident of his party's chances in the upcoming polls. He's so confident that he's promised of a 100-seat sweep. Here's an excerpt from this exclusive interview. You've chosen very, very strategic locations in the final push. You were in Patiala yesterday at Captain Amrinder's den. Today you are challenging the Sardar of the Akalis, and you'll also be going to Amritsar for a road show and Majitha as well. So the final push, the big battle, and you're just giving the last message to the voters that we are fighting against the big guns in Punjab. हर चुनाव में कैप्टन साहब बादलों के खिलाफ कमजोर आदमी खड़ा करते थे, बादल कैप्टन के खिलाफ कमजोर आदमी खड़ा करते थे और दोनों एक दूसरे को जिताते थे। पहली बार ऐसे हो रहा है कोई पार्टी आई है जो आंख में आंख डाल के इनके सारे दिग्गज नेताओं को चैलेंज कर रही है। तो इस बार जो ये जितने बड़े लुटेरे हैं पंजाब के, इनको हराना बहुत जरूरी है। इनके पैर पवित्र विधानसभा के अंदर नहीं पड़ने चाहिए अब दोबारा। तो पूरे पंजाब में कैंपेन चल रहा है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी सीटें हैं इनके ऊपर अब आखिरी टाइम में जाके हम
कैंपेनिंग कर रहे हैं और जनता तैयार है। जनता कह रही है, पहली बार देखने में आया है कि ये भी हार सकते हैं। नहीं तो लोगों को लगता था ये हार नहीं सकते ये लोग, अब लोगों को लग रहा है नहीं, हम हरा सकते हैं इनको, जनता हरा सकती है इनको। ये जो इनका फ्रेंडली मैच था अभी तक, जो लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते थे, कैप्टन और बादल दोनों का मिलके धंधा करते हैं। रेती बिजली के जितने ठेके हैं पूरे पंजाब के अंदर, सारे इनके जॉइंट धंधे हैं इन लोगों के, कांग्रेस वालों के और इनके। विक्रम सिंह ने बोला कि बदनाम कर रहे हैं ये लोग पंजाब को। अब अगर या तो वो सच्चाई जानते नहीं हैं और ये सच्चाई छुपा रहे हैं। पंजाब के घर घर के अंदर नशा पहुंच गया है, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए, पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो गए, माँओं से उनके बच्चे छिन गए, औरतों से उनके सुहाग छिन गए, और ये कहते हैं हम पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं। बार बार अरविंद एक बात ये जरूर हर जगह उठकर आई कि पंजाब में जब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, अब कल कप्तान साहब को घोषित कर दिया गया चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, पहले तो ये बताइए कि उसका आप कैसा असर देखते हैं आप चुनाव पे? एक्चुअली 4 दिन पहले आपको क्या लगता है क्यों जरूरत पड़ी इनको करने की? चुनाव के 4 दिन पहले इनको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने की क्यों जरूरत पड़ी? बुरी तरह से हार रहे थे, तो इनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में फिर इन लोगों ने डिसाइड किया यार ये ट्राई करके देखते हैं, शायद इसी से कुछ हो जाए। अब हालत ये हो गई है कि उनको सीएम तो क्या पीएम कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दो तो भी कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता नहीं है कि उससे कहीं ना कहीं थोड़ी कंसोलिडेशन होगी उनके फेवर में? आपकी तरफ से कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है, अकालीस की सीट हार रहे हैं। पटियाला में कल आप थे, जनता से मैंने देखा आप लोग बात कर रहे थे, जनता कह रही थी कि खुद ही हार रहे हैं। तो जब वो सीएम कैंडिडेट ही रह जाएंगे, वो एमएलए भी नहीं बन पाएंगे इस बार। नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस में है, आप अमृतसर भी जाने वाले हैं, सिद्धू फैक्टर के बारे में क्या कहेंगे? आप भी उन बीच में बड़ी बातचीत चली थी, आप भी चाह रहे थे कि आपकी पार्टी में आ जाए। अब उन पे किसी को भरोसा नहीं बचा, वो कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। पंजाब उनके लिए इम्पोर्टेंट थोड़ी है, उनका अपना करियर। कोई कभी जाके कहते हैं मेरे को डिप्टी सीएम बना दो, मेरे को सीएम बना दो, मेरे को ये बना दो, मेरे को। आपसे भी ऐसी बातें करी थी? डिप्टी सीएम हमने ऑफर किया था, वो नहीं माने, तो सीएम बनना चाहते थे। अब पता नहीं कांग्रेस ने क्या ऑफर किया उनको। आप एक अटैक आपका रहता था कि अब तक कांग्रेस डिक्लेयर नहीं कर रही है सिद्धू और कैप्टन को लड़वाने के लिए, वो तो खत्म हो गया। हाँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने और टाइम जो उन्होंने चूज किया उससे यही जाहिर है कि एज अ लास्ट मेजर, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, कोशिश कर रहे हैं। पर अब तो जनता मन बना चुकी है। मैं पंजाब की कैंपेन पे आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहूँगा। कुछ लेटर्स आए, उसमें संजय सिंह का भी था, कुछ फेक लेटर्स भी बाहर निकले। आपको लगता है कि काफ़ी डर्टी हो गई आखिरी में कैंपेन, पर्सनल हो गई, डर्टी हो गई? इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? डर्टी लोगों से डर्टी तो उम्मीद करोगे आप, अच्छी चीज़ कैसे उम्मीद करोगे? ऊट पटांग के फर्जी चिट्ठियाँ निकाल रहे हैं, फर्जी वो लिख रहे हैं। चीफ मिनिस्टर क्या पंजाब का पंजाब से ही होगा अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो? चीफ मिनिस्टर पंजाब से होगा, एमएलए चूज करेंगे जीतने के बाद। और वो क्या पंजाबी होगा या बाहर से भी आ सकता है कोई? पंजाबी होगा, जो जीते हुए एमएलए होंगे उन्हीं में से होगा। तो एक डिबेट सेटल्ड है कि कोई बाहर से नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। और पंजाब का ही चीफ मिनिस्टर? पंजाब का चीफ मिनिस्टर। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री होगा, जितने वादे हम लोग कर रहे हैं, मुझ पे भरोसा करना, मेरी जिम्मेदारी है, एक एक वादा पूरा कराऊंगा चाहे जो मर्जी मुख्यमंत्री हो। मैं आपसे ये भी जानना चाहता था, अब आपके बड़े सारे वीडियोस और ऑडियो आए पंजाबी में, कितनी मेहनत लगी आपको इस लेवल में पहुंचने में कि लोग आपकी बात समझ सके पंजाबी में? नहीं, ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी पंजाबी खूब चलती है, तो पंजाबी समझ तो लेते थे, थोड़ी थोड़ी बोल भी लेते थे, लेकिन फुल्का जी ने मुझे पढ़नी लिखनी सिखा दी। मैं अब पढ़ लिख भी लेता हूँ। तो अब आप जब लोगों से पंजाबी में बात करते हैं तो उनको बिल्कुल अपना मैसेज ढंग से समझा पाते हैं? बोल नहीं पाता ठीक से, एक दो लाइन तो बोलते ही हैं, हमें बोल के सुना दीजिए। सारे जने इस बार झाड़ू उत्ते वोट पानी है जी। मिलके सानू पंजाब बचाना है। अच्छा, ये बताइए कि कल राहुल गांधी जब स्टेज पे थे और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी है पंजाब में घूम रहा है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, उसको इतनी जल्दी है पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने की कि वो हर जगह जा जाके लोगों को बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट दो। और दूसरा एक ये हमारा बैठा हुआ है, हमने इसको तो डिक्लेयर भी नहीं करा, इसने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो। राहुल जी को बहुत जोर से बोलने दीजिए।
राहुल जी ने अपनी पूरी स्पीच अगर आपने सुनी, वो बौखलाहट की स्पीच थी। बौखलाए में बुरी तरह से, हताश हैं, हार उनकी स्पीच में झलक रही थी। डिड ही गिव यू अ विजन ऑफ पंजाब, कि पंजाब के लिए क्या करेंगे? कुछ बोला उन्होंने? उन्होंने संजय सिंह को गालियां दी, उन्होंने मेरे को गालियां दी और बिना बात की गालियां दी। मैंने कोई, पंजाब में अगर नशा है तो केजरीवाल ने फैलाया क्या नशा? कैप्टन साहब के रिश्तेदारों ने फैलाया नशा और उसी को आपने सीएम कैंडिडेट बना दिया। आपको नशे की चिंता है कि नहीं है? और राहुल गांधी बताएं, जब उनकी 10 साल सरकार थी केंद्र में, तब वो नशे पे क्या कर रहे थे? विक्रम सिंह मजीठिया भी कल बोले, उन्होंने आपके बारे में बोला और बोला कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल और जितने इनकी पंजाब की टीम है वो पंजाब को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मतलब नशा नहीं है पंजाब में, वो कह रहे हैं। आपका प्रेडिक्शन ईमानदारी वाला प्रेडिक्शन दीजिएगा, ये नहीं कि हम तो 117 सीटें ले आएंगे। 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा पक्का? पक्का। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे वाला, 100 से ज़्यादा सीट नहीं है। लिख के दूं? लिख के दे दीजिए मुझे। एक पेन अभी मैं ले लेता हूँ। अरविंद केजरीवाल भाई, पेन दो जरा मेरे को एक। और ये मैं अरविंद केजरीवाल से लिखवा रहा हूँ कि 100 सीटें आने वाली हैं आम आदमी पार्टी की पंजाब में। मैं ये वापस लेकर आऊँगा आपके पास। इस बार पंजाब के लोगों की जीत होगी। नशा हारेगा। भ्रष्टाचार हारेगा। ईमानदारी जीतेगी। आम आदमी पार्टी की 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। तो साइन कर दीजिए। चलिए, तो 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। अरविंद केजरीवाल ने मुझे लिख के दिया है। 11 पिछली बार भी दिल्ली के चुनाव में दीपक चौरसिया मेरा इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने पूछा कांग्रेस की कितनी आएंगी, मैंने कहा 0। तो हमारी शर्त लगी थी कैमरे पे, और उन्होंने कहा था, मैंने उनको भी लिख के दिया था, कांग्रेस की 0 सीटें आएंगी। आज भी वो लेके घूमते हैं। चलिए, मैं शर्त नहीं लगाऊंगा, मुझे हारने का शौक नहीं है, लेकिन ये लिख के दिया है अरविंद केजरीवाल ने, 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। 11 मार्च को इनके पास चलेंगे, यही उनकी लिखी हुई जो भविष्यवाणी है उसको लेकर कितनी खरी उतरती है ये लोग 4 तारीख को तय करेंगे। और 11 मार्च को एक बार फिर हम अरविंद केजरीवाल को आपके सामने पेश करेंगे, वो बताएंगे कि कितनी खरी उतरी उनकी भविष्यवाणी। All right, so confident Kejriwal, they're giving it in writing to India today that his party, the Aam Aadmi Party, will win 100 seats in the upcoming Punjab polls. Only time will tell whether really he lives up to that word, whether he can assure that the AAP will manage to secure 100 seats.